Good morning, children. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at your home. So, children, let's begin our class of computer for today. So, children, today we will begin with the topic of input. We will read about input, process, output, and also we will do one example according to the computer point of view. Okay, in the last lecture, children, if you remember, we have done the examples according to the day-to-day life basis. Okay, now today will be the example based on computer. So how will the computer work, children? You all know it works in 3 steps. First one is input, the second one is process, and the third one is output. Okay, so firstly we will read about input. The data and instructions that we enter into a computer are called input. अब चिल्ड्रन देखो, हम जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट बोलेंगे. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. whenever we will give any data or instruction to the computer, then that data and instruction will be called as input. Okay, आपको चिल्ड्रन अंडरलाइन भी करना है. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो we input data using a keyboard and a mouse. Alright, अब चिल्ड्रन देखो, हम जो भी डेटा देते हैं कंप्यूटर में, उसको हम कौन से पार्ट को, कंप्यूटर के कौन से पार्ट को यूज करते हैं टू प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर. वी विल यूज दीज 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यू कैन सी इन द पिक्चर. फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड and the second one is the mouse. This is the keyboard, okay, and this is the mouse of the computer. Okay, so ये जो 2 parts होते हैं कंप्यूटर के, चिल्ड्रन, these are required जिससे कि हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट दे सके. ओके, डेटा और इनपुट प्रोवाइड कर सके कंप्यूटर को. ऑल राइट, सो नेक्स्ट चिल्ड्रन, प्रोसेस. अब प्रोसेस जो होता है चिल्ड्रन, ये सेकंड स्टेप होता है कंप्यूटर के वर्किंग का. सो प्रोसेसिंग जितनी भी होती है चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दैट ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर इज ऑलवेज डन बाय द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, विच इज द CPU. So in this picture you can see this is the CPU given in this picture. So जो CPU होता है चिल्ड्रन, उसमें कंप्यूटर की सारी जितनी भी वर्किंग होगी, जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, वो सारी CPU परफॉर्म करता है. ऑल राइट, सो वर्किंग ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. सबसे पहले आप देखो प्रोसेसिंग क्या होता है चिल्ड्रन. प्रोसेसिंग वो टास्क होता है कंप्यूटर का जिसमें हम जो भी डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उस पे कंप्यूटर वर्किंग करता है, वर्क करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर में जो भी टास्क दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्ले एनी गेम ऑन द कंप्यूटर, तो आप उसमें पहले डेटा दोगे, आप कंप्यूटर को बताओगे कि आपको कौन सा गेम प्ले करना है. देन द कंप्यूटर विल डू इट्स प्रोसेसिंग. Okay, that means it will work on the data and then it will give you the result. In the result you can play the game on the computer. It will start the game on the computer. So this is the example I have given you of processing of computer. Now the CPU works on the data and does all the calculations. जो CPU है children, I have told you right now, CPU is the brain of the computer. And जो CPU होता है, it is very essential to work on the data and do all the calculations. जितना भी वर्किंग होती है, जो भी आपने डेटा दिया कंप्यूटर में, उसमें जितनी भी वर्किंग होगी, जितनी भी कैलकुलेशंस होगी, वो सारी CPU की हेल्प से होती है. ओके, सो आपको ये अंडरलाइन करना है, द CPU वर्क्स ऑन द डेटा एंड डज ऑल द कैलकुलेशंस. ये CPU की इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द आउटपुट.
Output means the final result. Output का meaning children you all can easily understand. It means the final result which computer will give you. When the CPU finishes processing the data, CPU ने अपना processing finish किया जब data पे, then the output is displayed on the monitor. At last आपको output कौन से computer के part पे visible होता है? On the monitors. Okay, this is the monitor screen on which you can see the final result of what data you have given to the computer. So monitor and printer are the most common output devices. Same children, monitor की तरह एक printer भी होती है device which is connected to the computer, और जो printer होगा it is also the output device. आपको printer पे भी एक तरीके का output मिलता है. Okay, so you have to remember these two examples of output devices. Now children, we will understand the working of computer with the example. Okay, so यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया चिल्ड्रन. हमने कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए. ओके, सो 2 and 5 आर द डेटा. हमने कंप्यूटर को डेटा दिया 2 and 5 नंबर इनपुट दिया हमने. ओके, और प्लस जो हमने एडिशन का जो सिंबल है वो एक इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर में. ओके, जो नंबर्स हैं 2 and 5 दीज आर द डेटा टू द कंप्यूटर एंड प्लस एडिशन सिंबल इज द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट द प्रोसेसिंग पार्ट में. अब प्रोसेसिंग के स्टेप में क्या करेगा चिल्ड्रन कंप्यूटर? नाउ द कंप्यूटर विल वर्क ऑन द डेटा एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. अब जो भी हमने डेटा दिया है चिल्ड्रन 2 and 5 नंबर्स. ओके, कंप्यूटर जो सीपीयू होगा, आपको पता है प्रोसेसिंग के स्टेप में हमेशा सीपीयू वर्क करता है कंप्यूटर का, तो सीपीयू उस डेटा पे वर्क करेगा. ओके, और वर्क कैसे करेगा? जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. सो इट विल ऐड द नंबर्स 2 and 5. इंस्ट्रक्शन आपने एडिशन का दिया है, सो इन द सेकेंड स्टेप इट विल डू द एडिशन ऑफ 2 and 5. आप यहाँ पे देख सकते हो 2 + 5. ओके, नाउ लास्ट स्टेप होता है चिल्ड्रन आउटपुट. सो 7 इज द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम और एडिशन. ओके, कंप्यूटर ने एट लास्ट एडिशन किया डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करके एंड इट विल गिव यू द फाइनल आउटपुट विच इज द सम ऑफ 2 and 5 equal to 7. Okay, so I hope the working of computer is clear to you children. So please again go through this topic once again today. Okay, and that's all for class. Thank you for watching.